Good morning, students. Welcome you all. Here, 1.8 lesson Voyaging Towards Excellence from your 12th English textbook, and hope this is going to be the last part. Up to this part, we have seen that writer Achyut Godbole and his colleagues, they could easily pass GRE examination and could migrate to US, but that thing never touched their minds. यानी ये कभी ख्याल उनके दिल में आया ही नहीं. क्यों नहीं आया? Because they wanted to understand the world, how it works, okay, and serving India and her people was their main aim, and so they did not do that thing and continued with their work with India or here in India only. Now let us begin the next part. Therefore I plunged into all these branches of knowledge. क्या कहते हैं वो कि बोले मैंने प्लंज किया. प्लंज किया करना यानी टू प्लंज इनटू मीन्स हियर डाइव इनटू यानी डुबकी लगाना. सो ही स्टार्टेड लर्निंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. सभी तरह का ज्ञान पाना उन्होंने चालू कर दिए. इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिनेसेंस फॉर मी. रिनेसेंस दैट इज अ रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग. पर्टिकुलरली ये लर्निंग से रिलेटेड है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. सो फॉर राइटर इट वॉज अ रीबर्थ, बट इन व्हाट कंटेक्स्ट? दैट इज गेटिंग द नॉलेज. ओके, सो ही स्टार्टेड acquiring every type of possible knowledge that he could. We used to discuss, we stand for here, writer and his friends who were learning in the third year batch of IIT Mumbai. As you know, writer was a chemical engineer from IIT Mumbai, and there to discuss about relativity. Relativity क्या है ये? It is a theory related to physics. Okay, again they used to discuss Big Bang. Again aesthetics. Aesthetics here, aesthetic means here the formal study of art or the idea of beauty. Okay, यानी सौंदर्य से related studies. Then again literature, again philosophy, economics and many other subjects every day until late into the nights. Means here late night also their discussion would continue on those various topics. Okay, so they wanted to learn more and more things, and again his friends were also filled with the same passion. उनके दोस्त जो थे उन्हें भी ऐसे लगता था कि हमें और जानकारी मिलानी चाहिए. सो डिस्कशन इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ एनी टॉपिक. यानी किसी भी एक ब्रांच है नॉलेज की, तो उसका अगर सभी तरीके से सभी एंगल से अगर आपको नॉलेज पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव अ गुड डिस्कशन, बिकॉज द थिंग्स विच आर अननोटिस्ड बाय वन पर्सन would be hinted by the other one. My cupboard was full of books on a variety of topics. और उनका कपबोर्ड जो था, किताबों का जो शेल्फ जो था वो पूरी तरह से भर गया था. एंड देयर वेर फुल ऑफ बुक्स. व्हाट टाइप ऑफ बुक्स? ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. सभी तरह के टॉपिक के ऊपर उनकी बुक की शेल्फ पूरी भरी पड़ी थी. ओके, देन माई cupboard was full of books on a variety of topics. It is only because of human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology. तो कहते हैं कि ये इन सभी के पीछे जो कुछ ये हमने नॉलेज एक्वायर किया है, that is the progress that we see today in the field of science and technology. ये क्यों? Because of human curiosity. Okay, so we can make a progress, and also in the field of social sciences. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility and humanity. That is concern for our fellow human beings. तो ये हमने पहले भी देखा है
कि he is proud of that what he is proud because he has the curiosity instinct. Again he is with humility and concern for the humanity. ओके तो ह्यूमिलिटी का मीनिंग मैंने कल भी आपको बताया था, दैट इज मॉडेस्टी, विनम्रता जिसे कहते हैं, और साथ में ह्यूमैनिटी, दैट इज केयर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, अवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स. आई लर्नड दीज वैल्यूज ड्यूरिंग माई IIT डेज. तो ये वैल्यूज जो है, क्यूरियोसिटी हो गई, ह्यूमिलिटी हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, दोज वैल्यूज दे वेर लर्नड बाय राइटर when he was studying there in IIT. I also became a firm believer in rationalism. Okay, तो एक तरह से firm believer यानी firm यानी strict, staunch. Okay, a great supporter of what? In rationalism. अभी rationalism का मीनिंग क्या होता है वो आपको दिया हुआ है वहाँ पे. That is the practice of basing opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious beliefs or emotional responses. तो rationalism का एक मीनिंग जो होता है वो कि आपकी सोच जो है वो सोच वो किसी दूसरों के बताए हुए ओपिनियन पे काम नहीं करती, बल्कि आपके खुद के ओपिनियन, आपके एक्शंस और आपके रीज़न और आपका नॉलेज, इन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो एक पूरी तरह से सोच समझ के लिया हुआ एक डिसीजन, ओके, और फॉर्म्ड ओपिनियन, दैट इज द रैशनलिज्म. एंड अगेन अनदर क्वालिटी दैट इज इक्वालिटी. ओके, सो ही बिकेम अ फर्म बिलीवर इन रैशनलिज्म एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ व्हाट काइंड? फॉर ऑल द कास्ट्स, creeds, races, genders and religions. I started treating nature as God and humanity as religion. तो ये important है स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो he started treating nature, उनके लिए नेचर भगवान बन गया, और humanity as a religion. तो humanity based on what? That is equality of all caste, creed, races, genders and religions. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो नेचर जो है, यानी हमारे जो आजू बाजू में जो नेचर है, ये नेचर उनका गॉड बन गया बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ क्रिएशन. ओके, और ह्यूमैनिटी उनके लिए रिलीजन बन गई. ह्यूमैनिटी क्यों? बिकॉज here if we are human being and treat others like a human being, then certainly we have the good abilities. We are the believers of equality. Nobody is superior, nobody is inferior, we all are equal, and does not have any type of superiority complex about ourselves. And so to believe that everyone is just equal like us. Okay, और यही ह्यूमैनिटी जो है वो उनके लिए रिलीजन बन गई. फिर वो कहते हैं आई पास्ड फ्रॉम IIT, जॉइंड अ नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स विथ सर्वोदया. तो सर्वोदय नाम की एक सोशल मूवमेंट है जो कि ट्राइबल पीपल के लिए काम करती है, और एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट है वो. तो इसको इन्होंने ज्वाइन किया अपने IIT पास आउट के बाद में. उसके बाद में पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह. फिर उन्होंने उन ट्राइबल लोगों के लिए सत्याग्रह भी किया, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा. वेंट टू जेल फॉर 10 days, केम बैक टू मुंबई, वॉज जॉबलेस फॉर अ वाइल. और उसके बाद में वो मुंबई आते हैं, और मुंबई आने के बाद में वे जॉबलेस थे. कुछ महीनों के लिए वो जॉबलेस थे. वर्कड फॉर 125 rupees पर मंथ टू सुपरवाइज वर्कर्स एट द नाइट शिफ्ट इन अ मैकेनिकल वर्कशॉप. उसके बाद में करीबन 125 रुपये महीने के हिसाब से नाइट शिफ्ट के ऊपर जो मैकेनिकल वर्कशॉप जो होता है उनके ऊपर सुपरवाइज करने का काम भी उन्होंने किया. तो देखिए यहाँ पे कि एक तरह से एक IIT
केमिकल इंजीनियर, और जॉब क्या कर रहे हैं वो 125 रुपये महीने का, वो भी वर्कर के ऊपर सुपरवाइज करने का नाइट शिफ्ट में। दिस इज द ट्रेजेडी। देन चेंज्ड 13 हाउसेस इन मुंबई एंड फाइनली सेटल्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज माई करियर। उसके बाद में करीबन उन्होंने 13 घर बदले, उनका काम चलते गया, उसके बाद में वो सेटल हो गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ये उनका करियर बन गया। फिर वो कहते हैं आई स्पेंट 32 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउट ऑफ विच आई वॉज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर और द सॉफ्टवेयर हेड फॉर 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, okay, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने करीबन 32 ईयर्स बिताए बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और किस तौर पर एज अ, यहाँ पे वे बता रहे हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर या फिर MD के तौर पर, और सॉफ्टवेयर हेड फॉर 23 ईयर्स। 32 ईयर्स में से 23 ईयर्स वो हेड बन के रहे, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर, तो कभी मैनेजिंग डायरेक्टर करके, तो कहीं पे सॉफ्टवेयर हेड करके, और वो भी किन के लिए, फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड। और जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे और जिनके ऑफिसेज जो है 6 ऑफिसेज इन US, द प्लेसेस वेयर ही वर्ल्ड, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया और कंपनी के नाम से वो कई देशों में गए, उन कंपनियों के हेड ऑफिस में उन्होंने काम किया। और वो बताते हैं कि 6 ऑफिसेज इन द US में थे, 3 यूरोप में थे, 1 जापान में था और 1 ऑस्ट्रेलिया में था। यहाँ पे एज अ हेड उन्होंने वर्क किया। I had to travel all over the globe around 150 times for businesses. Okay, so for the business purpose, he had to travel around the globe around 150 times. यानी दुनिया के उन्होंने 150 चक्कर काटे हैं पूरी दुनिया के, around the globe. Okay, तो उन्होंने 150 चक्कर करीबन काटे हैं। During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for a global distribution. Okay, तो ये यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने ये अपने 23 साल के करियर में, जो कि एक हेड करके उन्होंने बताया और चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर रहे, MD के पोस्ट पर रहे, तो इन 23 सालों में, और उनका टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करियर है 32 ईयर्स का। तो इस दौरान उन्होंने बोले 4 बुक्स लिखे, उन्होंने 4 किताबें लिखी उन्होंने, जिनके 500 से 700 पेजेस है उनमें हर एक में, जो कि बेस्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी ये किताबें बेस्ड है और इनको पब्लिश किया है टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन ने। ठीक है, और उसके बाद में उसका चाइनीज़ लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन किया गया। देन